सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम भरपूर है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। बहुत ही मालूमात आज के प्रोग्राम में हमने दी हैं। नाज़रीन, सफीर पाकिस्तान हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाता है और अच्छे अच्छे लोगों से और कामयाब तरीन लोगों से और उन लोगों से मुलाकात कराता है जो आपको कुछ ना कुछ इत्तलात दें, इंफॉर्मेशन दें। और ऑफकोर्स जो आपकी सबसे अहम तरीन चीज़ है, सेहत। सेहत दौलत है। अगर सेहत नहीं तो आपके मल्टी मिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर सब बेकार हैं। नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि जितने लोग बम धमाकों में, टेररिज्म में और दूसरे हादसात में मरते हैं, उससे ज़्यादा दिल की मर्ज़ से लोग मर जाते हैं। कहते हैं दिल बड़ी, यानी कि शायराना अंदाज में दिल को बहुत अहमियत दी गई है कि दिल ही तो है, दिल एक पत्थर है, दिल दरिया, दिल फरेबता। दिल को क्या क्या लफ्ज़ दिए हैं शायरों ने और राइटर्स ने, लेकिन असल काम तो दिमाग का होता है। दिल एक जस्ट अ पंप मशीन जो पंप करती है ब्लड को, आपका गंदा खून साफ़ खून को आगे पीछे करती है और आपकी ज़िंदगी को रवा दवा रखती है। आपके पूरे बॉडी में खून की पंपिंग होती है, जिससे तमाम आपके जिस्म के हिस्से काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। Your heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. 4 valves within your heart keep your blood moving the right way. The tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves work like gates on a fence. They open only one way and only when pushed on. Each valve opens and closes once per heartbeat, or about once every second. A beating heart contracts and relaxes. Contraction is called systole, and relaxing is called diastole. During systole, your ventricles contract, forcing blood into the going to your lungs and body, much like ketchup being forced out of a squeeze bottle. The right ventricle contracts a little bit before the left ventricle does. Your ventricles then relax during diastole and are filled with blood coming from the upper chambers, the left and right atria. Then the cycle starts over again. Your heart is nourished by blood too. Blood vessels called coronary arteries extend over the surface of your heart and branch into smaller capillaries. Here you can see just the network of blood vessels that feed your heart with oxygen-rich blood. Your heart also has electrical wiring, which keeps it beating. Electrical impulses begin high in the right atrium and travel through specialized pathways to the ventricles, delivering the signal to pump. The conduction system keeps your heart beating in a coordinated and normal rhythm, which in turn keeps blood circulating. The continuous exchange of oxygen-rich blood with oxygen-poor blood is what keeps you alive. नाज़रीन, पिछले हफ्ते मेरा अरकानसा स्टेट जाना हुआ था और ये मेरी काफ़ी अर्से से ख्वाहिश थी कि मैं
डॉक्टर सदाम महमूद से बातचीत करूं, उनका इंटरव्यू करूं, उनसे मुलाकात करूं और उनसे दिल के अमराज के बारे में बातचीत करूं। वो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हेड करते हैं अपने डिपार्टमेंट को, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सेंट विंसेंट इन आरकांसा में। और इसके अलावा ऑफ कोर्स उनकी अपनी प्रैक्टिस है और डा मेडिकल से इनका ताल्लुक़ है और साल से ये खिदमात पेश कर रहे हैं और हज़ारों मरीज़ इनसे गुज़र चुके हैं और आज ये मरीज़ इनके फ़रेफ्ता हैं और वो चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर सदीम महमूद को देखें, वही उनका इलाज करें, वही उनसे बातचीत करें। आज हमने उनसे एक तफसीली मुलाकात की है, दिल के बारे में मालूमात की है। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि अब जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो टांगों की भी सर्जरी करते हैं, टांगों में भी स्टेंट डालते हैं, ब्लड का फ़्लो बढ़ाते हैं कि आपकी टांगें ना काटी जाएं, आपकी टांग ज़ाया ना हो, आपका फुट ज़ाया ना हो। तो ये काम भी अब डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो आप समझ लें कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। मैंने उनसे उनके घर पे भी मुलाकात की, मैंने उनके थिएटर में मुलाकात की जब वो सर्जरी कर रहे थे, पेशेंट लेटा हुआ था और बड़ी सीरियस और लॉन्ग सर्जरी थी जिसको मैं देखता रहा और मैंने उनसे बातचीत भी की और उन्होंने क्या क्या बातचीत की हमसे, क्या क्या बताया, बहुत मुफीद बातें बताई। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जिस तरीके से उन्होंने आज बातचीत की है, बहुत कम कार्डियोलॉजिस्ट ने ऐसी बातचीत मुझे बताई है। मुझे एक नया उन्होंने विजन दिया, एक नया रास्ता दिखाया जो मैं अपने ऑडियंस है उनको मैं एजुकेट कर सकूँ। सदीम महमूद साहब एक मंझे हुए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक बेहतरीन इंसान हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी है उनकी और पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर सदीम महमूद, सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी बातचीत बहुत पसंद आएगी और अपने ख्यालत का इजहार ज़रूर कीजिए। हमारा ईमेल देख रहे हैं, हमारा फ़ोन नंबर देख रहे हैं, हमें ज़रूर कॉल कीजिए। नाज़रीन, तो आइए देखते हैं ये बहुत अहम तरीन इंटरव्यू। मुलाज़ा फरमाइए। Doc, what are you doing today? What we are doing here is we have got a patient which has got aneurysm in his stomach. Also, he has got in his aorta as well as he's got severe peripheral arterial disease. And our plan is to go from the right arm into the chest, down to the abdomen, and we are going to do an angiogram of both legs as well as aorta. And then we figure out where the blockages are severe, because if you have to fix the left leg, you have to stick the right groin. And if you have to fix the right leg, you have to stick the left groin. But if we stick on one side before we ascertain which side is worse, then you're stuck. So that's why we want to go from the arm
and figure out which leg is the worst so we can go from the opposite side. And sometimes when the blockages are not that severe, this gentleman has had stents in both his lower extremities. He has got severe blockages in the past. He's been having frequent claudication, that is pain in the legs when he's walking and when he is doing any activity. So we are going to work on his peripheral arterial disease and I see. aneurysm. Okay, okay. So you specialize in that? That is my specialty, and especially besides heart, coronary artery disease, my other major specialty is peripheral vascular disease and endovascular intervention. Oh, great. And this is one of the lead hospitals, I think is the number one in the world? It is one of the U.S. #1 hospitals in our state of Arkansas. नाज़रीन, आज मैं अपने शहर से बहुत दूर यानी कि लॉस एंजलिस से मैं यहाँ हूँ लिटिल रॉक आरकांसा। आरकांसा आपको पता है कि बड़ी मशहूर और मारूफ स्टेट है क्योंकि यहाँ के गवर्नर जनाब बिल क्लिंटन साहब रह चुके हैं, जो हमारे सदर भी रह चुके हैं। और आज मैंने बिल क्लिंटन लाइब्रेरी का भी दौरा किया और मुझे अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी अच्छी पोजीशन पर जो है फाइज हैं, स्पेशली मेडिकल फील्ड के अंदर। और आज मेरी मुलाकात है जनाब सदीम महमूद साहब से, जो बाय प्रोफेशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और लॉ मेडिकल के ग्रेजुएट हैं और 1990 में वो अमेरिका आए थे। और उनके तमाम पोर्टफोलियो और रेज्यूमे देखते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी तेज़ी से कदम बढ़ाए और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने कदम भी जमाए हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे इनके प्रोफेशन के बारे में, इनके अचीवमेंट के बारे में, इनकी लोकल एक्टिविटी के बारे में कि क्या कुछ करते हैं। तो आइए मुलाकात कराते हैं जनाब डॉक्टर सदीम महमूद साहब से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आज उनकी राइज गाह में मौजूद हूँ आरकांसा लिटिल रॉक में। अस्सलाम वालेकुम सदीम साहब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं आप? बड़ी खुशी हो रही है आपसे मुलाकात हो कि आपने मौका दिया। आपसे मेरी अपना की मीटिंग में मुलाकात हुई थी और जहाँ मुझे डॉक्टर समद ने आपसे मुतारिफ कराया था और बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और हम पहले भी कई डॉक्यूमेंट्रीज कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट के ऊपर बातचीत करें क्योंकि बढ़ती हुई एक मर्ज़ है। और मैंने सुना है कि इतने बंदे एक्सीडेंट और टेररिज्म से नहीं मरते हैं जितने हार्ट की बीमारी से मर जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कब अमेरिका आए, कहाँ से आपने तालीम हासिल की पाकिस्तान में और कहाँ आपने अपनी खिदमत अंजाम दी अमेरिका में और रेसिडेंसी आपने जो कंप्लीट की। 1990 में कराची से आया था। मैंने अपना मेडिकल स्कूल डाउ मेडिकल कॉलेज से किया है, जो कि अब आपको पता है डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी बन चुका है। बिल्कुल। इसके बाद मैं न्यू जर्सी में आया और वहाँ मैंने अपनी रेजिडेंसी की है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री न्यू जर्सी में। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने 1 साल क्रिटिकल केयर फेलोशिप की बेथ इज़राइल न्यूयॉर्क सिटी में। अच्छा अच्छा। इसके बाद मुझे क्रिटिकल केयर और इंटरनल मेडिसिन की जॉब मिली मेम्फिस टेनेसी में। अच्छा। वो मैंने 1 साल की। उस दौरान मेरा रुझान कार्डियोलॉजी की तरफ ऑलरेडी हो चुका था। और हमारे जो फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो इस एरिया में थे उसमें से वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी जो कि साउथ की आईवी लीग कहलाती है। अच्छा। तो उसमें मुझे फिर कार्डियोलॉजी और वैस्कुलर में दाखिला मिला। तो 1996 में
फिर मैं वहाँ मैंने ज्वाइन किया और मैंने अपनी फेलोशिप और वैस्कुलर ट्रेनिंग और कार्डियक ट्रेनिंग वहाँ की। उसके बाद फिर 1 साल मैं मेम्फिस में रहा। इतने दौरान मेरे दोस्त और मेरे पार्टनर डॉक्टर धर्म सिंह जो कि यहाँ आर्कन्सा में थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मौका है, अच्छी जगह है, और उस वक्त तक मैं परमानेंट पोजीशंस देख रहा था, इंटरव्यू कर रहा था। तो उनके कहने पे मैं आर्कन्सा आया। अच्छा। और आर्कन्सा इतना भला लगा कि वो घर बन गया। अच्छा। 1 साल के अंदर आई वाज एबल टू अचीव फुल पार्टनरशिप विद हिम। उसके बाद आपके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपके दोस्त भी हैं डॉक्टर उमर अतीक, जो उमर अतीक साहब जी। हाँ, उमर अतीक और शबीर और मैंने मिल के कार्डियक एंड कैंसर इंस्टीट्यूट क्रिएट किया यहाँ। अच्छा, माशाल्लाह। एंड पाइन ब्लफ में हमारा जो लिटिल रॉक से आधे घंटे के फासले पे है, वहाँ हमारा कार्डियक एंड कैंसर इंस्टीट्यूट है, जिसका मैं इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, भी है बाकायदा है और बहुत उम्दा सेंटर है जहाँ पूरे साउथ ईस्ट आर्कन्सा में कार्डियक, वैस्कुलर और कैंसर की ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो वो उस कार्डियक कैंसर इंस्टीट्यूट में 2 इंस्टीट्यूट साइमल्टेनियसली काम करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर इंस्टीट्यूट है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, आर्कन्सा कैंसर इंस्टीट्यूट है जिसके डॉक्टर उमर अतीक हैं, और हम सारों ने मिल के एक कार्डियक एंड कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जिसका इस वक्त मैं प्रेसिडेंट हूँ। जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा पिछले 15 साल से मैं आर्कन्सा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो मेरे मेजर अस्पताल हैं, एक आप आज आपने आए और आपने हमारे साथ विज़िट किया, थोड़ा टाइम गुजारा, सर्जरीज देखी, वो सेंट विंसेंट्स इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इस वक्त यूएस न्यूज़ के हिसाब से नंबर 1 हॉस्पिटल है। I'm one of the board members of cardiac review committee, उसके अंदर जो कि सबसे ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट इसी अस्पताल में हैं और 6 लोग मेंबर्स हैं इसके, जो कि we are responsible to keep the quality of Arkansas cardiology at the highest level. To the highest level. इसके अलावा जो 3rd लार्जेस्ट अस्पताल आर्कन्सा का है वो पाइन ब्लफ में है जिसका नाम है जेफरसन रीजनल मेडिकल सेंटर। मैं 6 साल तक उसका चेयरमैन ऑफ मेडिसिन और कार्डियोलॉजी रहा हूँ। उसके बाद नेचुरली मेरा टेन्योर लास्ट ईयर ख़त्म हुआ है उसका, लेकिन अभी भी एक्टिवली मैं वहाँ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। और तीसरा जो मेजर हार्ट इंस्टीट्यूट आर्कन्सा में है वो आर्कन्सा हार्ट हॉस्पिटल है जिसके अंदर और मैं ऑल्सो इंटरवेंशनल प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो माशाल्लाह ये 90 से जी, अब ये है 2014 जी, माशाल्लाह काफ़ी अर्सा हो गया, 25 काफ़ी साल 25 साल हो गए आपको। जी। और आपकी जो मैंने सुना है कि माशाल्लाह आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। बहुत Patient मेहरबानी। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ऑफ प्रैक्टिस है कि कम्युनिटी में जहाँ सारे बाकी फिजिशियंस और कार्डियोलॉजिस्ट इस वक्त मुलाजमत करते हैं अस्पतालों में, 2 या 3 ही हम लोग हैं जिसमें एक मैं और मेरे पार्टनर हैं जो कि अभी तक मरीज़ों के सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो हम अभी तक अपने मरीज़ों के मुलाजिम हैं। अच्छा That's the best way to take. That's the best way to explain. And और सबसे बड़ी बात ये है, प्राइड ये है इस प्रैक्टिस की कि इस प्रैक्टिस को ग्रास रूट से बनाया, लोगों की खिदमत की, कम्युनिटी में नाम बनाया, और इस वक्त 80% मेरे मरीज़ मेरा नाम सुन के आते हैं, कोई रेफ़र नहीं करने की जगह। ऑफ कोर्स मेरे काफ़ी कॉलीग्स हैं जो कि मुझे रेफ़र करते हैं पेशेंट्स और हम उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे मरीज़ जो आते हैं मेरे पास वो अपने किसी भाई से, बाप से, बेटे से, दोस्त से, पड़ोसी से नाम सुन के आते हैं। ऐसे तो यहाँ पे जो कार्डियक डिजीज़ है आर्कन्सा में, जी, इट इज़ इन अ राइज और It is in a rise. Unfortunately, Arkansas
आपको पता है स्टेट्स के हिसाब से इज़ नंबर 48 एजुकेशन में और पॉवर्टी में। नेचुरली जो यहाँ की एक ग़ज़ा है, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, उसमें कार्डियक एंड वैस्कुलर डिजीज़ बहुत कॉमन है। स्पेशली जो हमारे अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है उसमें डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा इवन जो स्टैंडर्ड अमेरिकन वाइट पॉपुलेशन है उसमें भी ये डिज़ीज़ बाकी सब स्टेट्स के मुकाबले में ज़्यादा है। कुछ इसका ताल्लुक डाइट से है, कुछ इसका ताल्लुक जेनेटिक्स से है जो ख़ास तौर पे यहाँ लोग आए, और कुछ सदन डाइट्स और हॉस्पिटैलिटी और माहौल आपको पता है फेमस है। तो इसके अलावा आई थिंक एजुकेशन जो है उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जो स्टेट्स जिनमें एजुकेशन ज़्यादा है, जहाँ रियलाइजेशन प्रॉब्लम्स की ज़्यादा है कि ग़िज़ा से और हेल्दी लाइफस्टाइल अगर ना हो तो बीमारियाँ होती हैं, वो एहसास अभी एजुकेशन हमारी पॉपुलेशन में इतनी नहीं है। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह से ये बीमारियाँ यहाँ ज़्यादा हैं। तो उसके लिए कोई अवेयरनेस, कोई एजुकेशनल सिलसिला शुरू किया कौन सा हॉस्पिटल ने या रीजनल हॉस्पिटल? सब अस्पतालों ने रीजनल एजुकेशन किया है। मैं खुद डायरेक्टली इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स में बहुत इन्वॉल्व हूँ। इसके अंदर हम डिफरेंट लेवल के ऊपर वर्क करते हैं। कुछ हम लोग जाके लोकल चर्चेज़ में, सेंटर्स में टॉक्स करते हैं, देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। कुछ अपने प्राइमरी केयर फिजिशियंस के हमने लेक्चर प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। और इसके अलावा हम जो अदर कार्डियोलॉजिस्ट जो इतनी हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स और प्रोसीजर्स नहीं करते, जनरल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जब भी हम इस तरह की चीज़ें, आपने आज सुना था कि आते हैं लोग हमारे पास ट्रेन होते हैं, ताकि मैं इस वक्त इन्वॉल्व हूँ रेजिडेंसी प्रोग्राम के जो रेजिडेंट्स हैं उनको ट्रेन करने में। अच्छा, इसके अलावा कार्डियोलॉजी के फेलोज जो यूएमएस में हैं वो मेरे साथ वर्क करते हैं आर्कन्सा हार्ट हॉस्पिटल में, उनको वेरियस मॉडर्न टेक्निक सिखानी। इसके अलावा नर्सिंग स्कूल के काफ़ी नर्सिंग प्रोग्राम्स हैं, नर्स प्रैक्टिशनर प्रोग्राम्स हैं, पीए प्रोग्राम्स हैं। उन सब के स्टूडेंट्स हमारे साथ रोटेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, ताकि एक ना सिर्फ अवेयरनेस बने बल्कि एक हेल्थ केयर की एक जो खला आ गई है, क्योंकि मरीज़ ज़्यादा हो गए हैं, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, लेकिन ऑपरेटर्स बहुत कम हैं। तो उनको बढ़ाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, छोटे छोटे यहाँ के गाँव में हेल्थ पहुँचाने के लिए हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। एक्सीलेंट। ऐसा माशाल्लाह आप डाउ मेडिकल के ग्रेजुएट्स हैं, पाकिस्तान से आपने तालीम हासिल की, तो आप प्राउड तो करते होंगे कि मैं एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से पढ़कर आया जी, और अपना एक मुकाम बनाया। उसके बारे में क्या ख्याल आपका? आई थिंक ये अपने कंट्री की सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान ने मुझे दी, वो ना सिर्फ तालीम दी बल्कि एक बहुत सस्ती कीमत पे बहुत उम्दा तालीम दी। इसके अलावा उसने मुझे एक कैरेक्टर मेरा डेवलप किया, जिस कैरेक्टर के अंदर खिदमत का, इसके अंदर एक और डेवलप किया कैरेक्टर के खुश उसलूबी, और सबसे बड़ी बात ईमानदारी। ये जो कैरेक्टर्स एक हम लेके आए हैं, आई थिंक खुदा की मेहरबानी के बाद ये सब चीज़ें हैं जिन्होंने सबसे आगे मुझे बढ़ाया है। अच्छा, तो यू सो प्राउड टू बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया और आप उसके मशहूर हैं और शुक्रगुजार हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा कि आप पाकिस्तान के लिए भी कुछ करें, स्पेशली इन योर डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी? एक्चुअली करें नहीं, मैं करता हूँ। अच्छा, करते हैं। काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने प्रोग्राम्स, आप डॉक्टर शाहिद अमीर और उमर अतीक इनका
NWFP में हॉस्पिटल है जी। जिसमें जब अपना का प्रोग्राम वहाँ हुआ था तो उसमें हमने एक फ्री इंटरवेंशनल क्लिनिक की थी जिसमें मैंने काफ़ी प्रोसीजर्स वहाँ किए। इसके अलावा जब भी मैं जाता हूँ लाहौर, मेरी फैमिली लाहौर से है, अच्छा। जब भी जाता हूँ ज़रूर मेरी कोशिश ये होती है कि वहाँ कार्डियक सेंटर्स में, अस्पतालों में लेक्चर्स दूँ, एजुकेशन की तालीम आगे बढ़ाएं। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से हमारे पास मेडिकल स्कूल में जब होते हैं तो रोटेट करने आते हैं। अच्छा। और हमारे पास टाइम गुजारते हैं। ऑफ कोर्स हम हमेशा से यही एक कशिश रह गई कि ज़्यादा करना चाहते हैं जी। लेकिन जिस तरह आजकल की ज़िंदगी है, वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ के हालात हैं, यहाँ के हालात हैं, बहुत कंट्री लेवल पे, पर्सनल लेवल पे उतना नहीं कर सके जितना करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा रहती है। कोशिश रहती है, ज़बरदस्त कोशिश हमेशा रहती है। अच्छा। तो आप क्या समझते हैं कि आप फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान में भी एक अमेरिकन बेस एक्चुअली प्लान करना नहीं, हम उस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं जिसके अंदर मोर टुवर्ड्स फ्लाई रादर देन के बिजनेस के पॉइंट से। काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान में कुछ प्राइवेट एरियाज़ में, कुछ गवर्नमेंट बेस एरिया में और NGOs के हैं जिनके अंदर काफ़ी काम हो रहा है और उसमें जब भी हम लोग जाते हैं कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर गुजारते हैं। अच्छा। ऑफ कोर्स मेरी तो हमेशा से आप इस वक्त जो चेयरमैन हैं चेयरमैन और वाइस चांसलर ऑफ डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी, Dr. Masood Hamid sir. He is one of the reasons I am a cardiologist today. Oh, mashallah. He is a cardiologist himself. और जब भी मीटिंग्स पे कहीं भी मुलाकात होती है बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बैठ के बातें करने में। मेरी वालदा प्रोफेसर थी सर्जरी की डाउ मेडिकल कॉलेज में। Oh, माशाल्लाह। क्या नाम था? किशोर नाजरी। अच्छा। और मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे रेडियोलॉजी के अपना जनाब में। अच्छा। तो तभी तो लोग मजाक उड़ाते हैं तुमने हाइब्रिड सीख लिया दोनों की फील्ड्स का। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी हाइब्रिड है, सर्जरी का और रेडियोलॉजी का। जी। एनीवेज, तो वो मसूद हमीद साहब मेरी वालदा के जूनियर एसोसिएट डॉक्टर होते थे। अच्छा। और जब वालदा वहाँ सर्जरी करती थी तो मेडिसिन की जब भी क्लियरेंस और कार्डियोलॉजी की इवैल्यूएशन होती थी वो मसूद हमीद साहब को बुलाती थी। तो उस वक्त से जब वो उस वक्त जूनियर नए डॉक्टर थे, यंग आदमी थे, उनसे मेरी मुलाकात और सलाम दुआ रहती थी। फिर मेडिकल स्कूल के दौरान तो और हो गई। तो उनको देखा देखी मेरा शौक हुआ कार्डियोलॉजी का मेडिकल स्कूल में कि ये प्रोफेशन मेरे मतलब का है, क्योंकि इसमें एक चैलेंज है और उस वक्त बहुत इनोवेशन आ रही थी। जब मैंने मेडिकल स्कूल ख़त्म किया उस वक्त स्टेंट अभी आए नहीं थे, जो अब हर कोई सुनता है स्टेंट। जब मैंने अपनी कार्डियोलॉजी की फेलोशिप ख़त्म की उस वक्त सेकंड स्टेंट बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन में थे। तो ज़माने में क्या लोग करते थे? खाली बलून एंजियोप्लास्टी या बाईपास। अब आप ये सोचेंगे जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की उस वक्त अस्पतालों में एवरेज था एक हार्ट सर्जन 250 से 300 बाईपास करता था। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मुश्किल से हार्ट सर्जन 50 भी बाईपास नहीं करता, क्योंकि हम सारी ये टेक्नोलॉजी से एडवांसेस से हम ये सारी चीज़ें जो पहले सर्जरी को बाईपास कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, सर्जरी को बाईपास कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो और पेशेंट्स के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि एक आप अगले दिन उठ के सेहतयाब होकर चले जाते हैं। बिल्कुल। आपको काम से 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। और अब तो हमने रिसेंट
एडवांस ये आई है कि हम रिस्ट से पूरा आर्टीरियोग्राम, कैथ और स्टेंट्स वगैरह बहुत से पेशेंट्स का रेडियल करते हैं। अब ये पाकिस्तान में भी हो रहा है यहाँ, और यहाँ भी ये बहुत हो रहा है। और उसमें ये हो रहा है कि रेडियल से ये फ़ायदा ये है कि प्रोसीजर के बाद बंदे को लेटना नहीं पड़ता, वो बैठा होता है। और आप अगर आपने हार्ट का स्टेंट भी डाला तो अगर बिल्कुल पेशेंट ठीक है तो 5 या 6 घंटे में घर चला जाता है। जबरदस्त। हाँ, तो ये अब सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं ये पिछले 2-3 साल में। बेहोश भी नहीं कर रहे हैं आजकल आप? बिल्कुल नहीं। आज मैंने पेशेंट देखा वो तो सब बातें कर रहे हैं और हम साथ में पूरी सर्जरी कर रहे हैं। आपने यानी कि बड़ी मेजर वो थी और प्रोसीजर था। हाँ, वो एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म का प्रोसीजर था और उसमें पेरिफेरल इंटरवेंशन थी जिसमें हमने रोटाब्लेटर किया, उसका लेज़र की, टांग का स्टेंट बंद हो रहा था, उसकी हमने लेज़र की, उसको खोला और फिर उसके ऊपर स्पेशल ड्रग कोटेड बलून यूज़ किया ताकि वो स्टेंट बंद ना हो। तो वो सारा आज हमने किया। हाँ, वो अच्छा, यानी कि वेरी सरप्राइज। हाँ, तो फिर ये जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है इनका क्या होगा? एनेस्थीसिया का अपना एक रोल है, उसका अपना रोल है। बहुत सारी आपको पता है सर्जरी सारी एनेस्थीसिया से होती है। हमारी फील्ड में एनेस्थीसिया का रोल बहुत कम हो गया है क्योंकि हम ज़्यादातर प्रोसीजर्स लोकल में आराम से कर सकते हैं। अच्छा। हमारे फील्ड में और दूसरी टेक्नोलॉजी आई है। आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, बेचारे CV सर्जन्स परेशान हुए हैं। हार्ट सर्जन्स के तुम लोगों ने सबको स्टेंट लगा के खड़ा कर देते हो, हमारी बाईपासेस खत्म हो गए। they want to learn about vascular। अच्छा, और वैस्कुलर के अंदर वैस्कुलर सर्जन्स जो हैं वो ज़्यादा पहले बाईपास कर देते थे, लेकिन अब 90% हम उनके बाईपासेस को वैसे ही हम आर्टरीज को रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जो आर्टरियाँ बंद होती हैं उनको बाईपास करने की जगह रिकंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि मेरे पास मेरे वैस्कुलर सर्जरी कॉलीग्स मुझे खुद वो पेशेंट्स भेजते हैं जिनके बाईपासेस फेल हो चुके हैं। अच्छा। और हम उनकी ओरिजिनल आर्टरी जिसके लिए बाईपास हुआ था उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अच्छा, वो कैसे करते हैं आप? उसके काफ़ी डिवाइसेस हैं। उसके अंदर सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि पहले तो आप एक बंद आर्टरी के अंदर आप एक कॉरिडोर बनाते हैं। कॉरिडोर बनाए। अच्छा, फिर उस कॉरिडोर के ऊपर हम डिफरेंट और क्लीनिंग डिवाइसेस हैं, रोटाब्लेटर है, एथेरेक्टमी है, लेज़र है, जिससे फिर हम उसको, आप समझें एक सुरंग है, आपने एक माउंटेन की चट्टान के अंदर सुरंग बनानी है, तो पहले तो आपने उसमें से एक टाइनी लेज़र जितनी फाइन आपने एक लाइन गुजारनी। जब आप एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं फिर आपने उसको क्लीन करना शुरू करना होता है अंदर से बाहर, ताकि एक अच्छी सुरंग बन जाए। और जब एक बार सुरंग बन जाती है और हम देखते हैं कहीं कोलैप्स नहीं हो रही तो ठीक है, लेकिन अगर कोलैप्स होती है तो जिस तरह इंसान स्कैफोल्ड्स नहीं लगा देता तो हम उसका स्टेंट्स यूज़ करते हैं उसको कम्प्लीटली ओपन रखने के लिए। इसके अलावा जो सर्जरीज में बाईपास, जितने भी वैस्कुलर के बाईपास होते हैं अप टू नी या नी से थोड़ी नीचे तक जा सकते हैं, लेकिन जो आर्टरियाँ नी से फुट तक ब्लॉक्ड हैं बाईपास सर्जन उसका कुछ नहीं कर सकते। हम उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने पिछले 2 साल के अंदर इस टेक्नोलॉजी पे इतना काम किया है और इस कंट्री में बहुत फ्यू लोग हैं जो कि इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं और वो जितनी भी नई डिवाइसेस आती हैं उनको यूज़ करने के काबिल हैं। आई एम वन ऑफ देम। और उसकी वजह से ये है कि जो और बाकी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, वैस्कुलर सर्जन्स एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास आके ट्रेन होते हैं हाउ टू यूज़ दोज डिवाइसेस, क्योंकि एम्पुटेशन इट्स अ डेथ सेंटेंस। अगर इंसान की एम्पुटेशन दोनों लेग्स की खुदा न खास्ता हो जाए तो उसकी 90% मोर्टेलिटी, मौत 2 साल में हो जाती है। जब तक आपकी टांगें हैं आप चलते रहते हैं और जब तक आप चलते रहते हैं बाकी बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। बिल्कुल। तो वो
टांगों को जो इतनी एम्पुटेशंस होती थी, हमने उसको ऑलमोस्ट 70% रिड्यूस कर दिया। 70%, गुड। तो ये बट अभी भी ओवरऑल कंट्री में इतना रिड्यूस नहीं हुआ। और मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ मेडिकली सबसे एडवांस है। अभी तो पाकिस्तान में ये चीज़ पहुंची नहीं है, अफसोस की बात है। हाँ, और दूसरी बात ये ख़ास तौर पे वैस्कुलर, पेरिफेरल वैस्कुलर, पाकिस्तान क्या जो कि कंट्रीज मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज लाइक दुबई, अबू धाबी, जिनमें एडवांस्ड हॉस्पिटल्स अमेरिकन बेस्ड पहुंच चुके हैं, लेकिन उधर भी नहीं ये टेक्नोलॉजी पहुंची, और यूरोप के अंदर भी ये कम है। तो यूरोप से भी लोग आते हैं हमारे पास ट्रेन होने। अब तो हमने वाल्व्स को, जिसकी हमेशा ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, एओर्टिक वाल्व, उसको भी हम ग्रॉइन से जाके रिप्लेस कर सकते हैं। Oh, that's great. तो वो भी हो रहा है। एनोरिज्म जो पेट के होते थे बड़े, जो कि हमेशा काट के ठीक होते थे, अब 80% हम उसको स्टेंट्स, उसके स्पेशल स्टेंट्स आ रहे हैं, नई डिवाइसेस आ रही हैं जो कि हम उसको वहीं फिक्स कर देते हैं विदाउट ओपनिंग द पर्सन अप। The Da Vinci, the robot surgery. हाँ, You do that? डिवेंची कौन सी? The robotic. रोबोटिक सर्जरी जो होती है, डिवेंची रोबोटिक सर्जरी, वो सीवी सर्जन्स करते हैं। अच्छा। वो हम लोग जो रोबोटिक्स करते हैं, जो वैस्कुलर करते हैं, उसमें रोटाब्लेटर है, डायमंड बैक एथरेक्टमी है, लेजर एथरेक्टमी है, और ये एथरेक्टमीज आती हैं। अच्छा। जिसमें हम रिकंस्ट्रक्शन डिवाइसेस से करते हैं। तो डिवेंची जो डिवाइस है और उस तरह की डिवाइसेस हैं रोबोटिक सर्जरी की या न्यूरो रोबोटिक सर्जरी की, वो न्यूरो सर्जन की और हाईली स्पेशलाइज्ड हम सीवी सर्जन्स करते हैं। लेकिन अगेन there is no silver bullet which is going to fix everything. Yes. Every kind of disease is in each individual, even if they're carrying the same diagnosis, is totally different. As they famously say, every landing and every takeoff is different. Yes. By even the same pilot. Yeah. So it is like that. And आप एक वेसल में जाएंगे और आप वही तरह के ब्लॉकेजेस आपको नजर आएंगे, लेकिन एक अंदर एक फील होती है। उसके लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे क्लीन करने के लिए, दूसरे के अंदर टोटली दूसरा यूज करेंगे। डिपेंडिंग ऑन हर एक इंसान की अंदर की पैथोलॉजी, जिस तरह इंसान की शक्ल डिफरेंट है, अंदर की बॉडी भी डिफरेंट होती है। तो उसी हिसाब से आप उनको ठीक करते हैं, उसी हिसाब से आप उन पर वर्क करते हैं। किडनी के ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसको भी हम स्टेंट कर लेते हैं। और इसके अलावा अब कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी एक्सपेरिमेंटल हैं, भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि हाई ब्लड प्रेशर को भी लेज़र ट्रीटमेंट से ठीक करने का किडनी के ऊपर आया है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। हाँ, लेकिन अभी वो एक्सपेरिमेंटल। ऐसा क्या मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपसे भी बातचीत करूँगा कि स्पेशली हमारे अमेरिकन एशियन के अंदर हार्ट की बढ़ती हुई जो है बीमारियाँ हैं, और उसके लिए आप क्या आज हमारे नाज़रीन को मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरह से वो, जिसमें डायबिटिक भी हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी हैं, मोटापे वाले भी हैं, और जो ख़ानदानी जिनको मवारसी बीमारी हार्ट की है, वो भी उनके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे आज? सबसे पहली एडवाइस तो मेरी ये ज़रूर होगी कि आप अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाके अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करें। एशियन, पाकिस्तानी और इंडियन ओरिजिन के लोगों में एक स्पेसिफिक किस्म की जेनेटिक प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना एक चीज़ है, लेकिन होता यह है कि कोलेस्ट्रॉल के भी आगे सब कैटेगरीज होती हैं। उसमें एक कैटेगरी लेमन टर्म में एक बैड कोलेस्ट्रॉल होती है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होती है। बैड कोलेस्ट्रॉल वो होती है जो कि जाके आपकी नसों में, आर्टरीज में जम जाती है, जो कि ब्लॉकेजेस बनाती है। और गुड कोलेस्ट्रॉल आप समझ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की पुलिसमैन है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको आर्टरीज को सफा करे। लेकिन एशियंस और पाकिस्तानीज में और इंडियन ओरिजिन के लोगों में वो गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होती है। अच्छा। जबकि वाइट अमेरिकन
और अफ्रीकन अमेरिकन स्पेशली डायबिटिक अफ्रीकन अमेरिकन में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल इतनी कम नहीं होती। हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल इतनी हाई, कुछ लोगों की हाई होती है, लेकिन अगर किसी की इतनी हाई ना भी हो, लेकिन हमने देखा है, और वो बड़े स्लिम स्मार्ट एक्सरसाइज करते हुए लोग हैं, उनके अंदर भी ये हार्ट की डिजीज आती है बहुत ज़्यादा, और वैस्कुलर प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनमें गुड कोलेस्ट्रॉल कम होती है। अच्छा। तो ये एक फर्स्ट चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि स्पेशली जो भी मर्द 35 या 40 उम्र से ज़्यादा है, उन सबको जाके एक तो जाहिर बात है वज़न कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्मोक ना करना, ये सारी चीज़ें हमने अब 100% प्रूव हो चुकी हैं, डायरेक्टली आर्टरीज को डैमेज करती है, डायरेक्टली डैमेज करती है। इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो ये जो स्मोकिंग आपके बिल्कुल हाथ में, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने सेक्स को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो सेक्स चेंजिंग मतलब आपकी जो इंटरनल आर्टरीज वगैरह नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें जो हैं उनकी हमें सिर्फ वी हैव टू बी एस्ट्यूट, जिसको कहते हैं, अबाउट द सिचुएशन, और अगर हमें नज़र आ रही है तो कर्ब इट इन द बड। जहाँ आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल कम है उसको आप इम्प्रूव करते हैं एक्सरसाइज से, कुछ मेडिसिन हैं, वाइटामिन हैं, नायासिन वगैरह, उससे आप गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज सबसे बेस्ट चीज़ होती है उसमें, जो कि बाकायदा बढ़ाती है। तो दूसरी चीज़ जो हमारे एशिया में बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, उसके जल्द मालूम करना, बढ़ा हुआ वज़न, अगर आप डायबिटिक नहीं है लेकिन आपकी बॉडी डायबिटिक्स की तरह बिहेव करती है, तो वज़न कम करना, और ये सारी गुड हेल्दी लाइफस्टाइल्स में आ जाती है। और इसके अलावा पीरियोडिकली रेगुलरली अपने प्राइमरी केयर के पास जाके आप चेक करें। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं उसको इग्नोर ना करें। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी मुझे कुछ नहीं, जिस बदहज़मी सी हो रही है। आधे से ज़्यादा लोग जो कि ER में हार्ट अटैक के साथ आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको बाकायदा अपने सिम्टम्स को उन्होंने इग्नोर किया होता है। वो समझते हैं कि जी बदहज़मी हो रही है, थोड़ी हमारी उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए हम स्लो हो गए हैं, मैं एक्सरसाइज नहीं किया करता था तो मेरी सांस फूलती है अब। तो ये सारे एक्चुअली हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। इसी तरह वैस्कुलर डिजीज़ में अगर कहते हैं पहले कि जी चलते थे, तो अब पहले चलते थे कुछ नहीं होता था, पिंडलियों में थोड़ा दर्द होता है, शायद मैं एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन ये वैस्कुलर डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। अच्छा, दो तरह की वैस्कुलर डिजीज़ हैं। एक तो हमने आज देखी आर्टीरियल प्रॉब्लम, एनोरिज्म्स हो गए, ब्लॉकेजेस हो गए। दूसरी वेन की प्रॉब्लम। वेन वो आपकी नस है जो कि गंदा खून आपकी टांगों से निकालती है, आर्टरीज तो फ्रेश खून लेके जाती है। तो अगर काफ़ी अरसे तक इंसान कंक्रीट पे खड़ा रह के काम करे, और कुछ जेनेटिक्स होते हैं, कुछ हाई ब्लड प्रेशर और किडनी प्रॉब्लम से भी वेन्स भी ख़राब हो जाती हैं, उनकी वजह से भी सर्कुलेशन काफ़ी मुतासर होती है। और वो अब इतना आसान हो गया है ट्रीट करना, हम उसको ऑफिस में वेन्स को लेज़र से ठीक कर देते हैं। अच्छा, ऑफिस में बकायदा अब ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर हो। So how do you find out about your vein is not working or bad? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात तो आप पेशेंट आपको बोलेगा आके कि जी मेरे टांगों में वर्म आ जाते हैं, सूज जाती है। मैं सारा दिन काम करने के बाद जब मैं रात को जाता हूँ तो मेरे मोज़ों में लाइन बनाई हुई होती है, मेरे एंकल्स सूजे हुए होते हैं। तो ये एक क्लासिकल वेन का सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ये है कि जब मैं रात को, दिन में चलते हुए कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं रात को लेटता हूँ तो मेरी टांगों में बड़ी क्रैम्पिंग होती है और मेरी टांगें बड़ी रेस्टलेस होती हैं, या मेरी टांगें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
और मुझे चाहे मैं मोज़े भी पहनूँ, रज़ाइयाँ भी लूँ, लेकिन गर्म नहीं होती। तो ये सारे साइंस वेन के प्रॉब्लम के हैं। उसको चेक करना बड़ा आसान है। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड आपको दिखा देता है कि वेन आपकी ख़राब है या ठीक है, और अगर ख़राब है तो उसकी डिग्री क्या है ख़राबी की। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो उसको आप उनको बोलते हैं कि आप सब कंप्रेशन स्टॉकिंग्स कहते हैं हम लोग, वो बड़े जो स्टॉकिंग्स होते हैं जो प्रेशर देती हैं वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ख़राब हो जाए, हाई डिग्री होती है, तो फिर उसको लेज़र से हम ट्रीट कर देते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। हाँ, और लेज़र से एक दफ़ा आप एक वेन को लेज़र से ट्रीट करें तो सारी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाती है आपको। हाँ, आपकी टांगों में काफ़ी वेन्स होती हैं, इसलिए यूजली मैंने अपने प्रैक्टिस में इस वक्त मैं कोई ओवर 6000 वेन्स ट्रीट कर चुका हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। तो उसमें मैंने देखा है कि 80% लोगों को एक ट्रीटमेंट अगर आप सही तरह से करें तो एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती। उसके बाद 90% उनकी टांगें ठीक रहती हैं। बहुत बाकी 20-30% को 2 मैक्सिमम 3 ट्रीटमेंट्स चाहिए होती हैं। ख़ास तौर पे जिन लोगों को जो अल्सर हो जाते हैं टांगों में, सूजी हुई टांगों में अल्सर हो जाते हैं, उनको ज़रा ज़्यादा ट्रीटमेंट्स चाहिए होती हैं टू किल ऑल द बैड वेन्स। Bad vein. Excellent, sir. Thank you very much. शुक्रिया For your time. थैंक यू। Yeah. थैंक यू। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे मुलाकात डॉक्टर सदीम महमूद से, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत ही अहम तरीन शख्सियत। इंशाल्लाह फिर भी आते रहेंगे और गाय बगाए आपको दिल के बारे में बताते रहेंगे कि आप एक ताज़ा, सेहतमंद, मजबूत दिल कैसे कायम रख सकते हैं। Welcome to Health Minute by Dr. J. Today we're going to talk about nosebleeds. You know, kids are at home, they're running around. Sometime a kid comes and say, nose is bleeding, nose is bleeding. What do? The quick Health Minute tip is take your thumb and finger and pinch the nose in the front and keep pressure on that with like this and keep on holding for 5 minutes. Do not let go of your hand and then check if he's bleeding, if he's bleeding. Yes, he's bleeding. Keep direct pressure on the nose for 5 minutes. Mostly and most of the time the bleeding will stop. If you let go and the bleeding is still going on, hold the nose back in again, and this time keep a 10 minutes pressure. During this time, call for help, call 911 or have the kid taken to the doctor so the bleeding can be taken care of. Thank you. Keep on watching Health Minute by Dr. J. मेरा नाम सोहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का CEO हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यून ग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यून ग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। If you are suffering from weakness and inability to walk, pain, numbness, myasthenia gravis, or GBS, if you are having burning sensations which are caused due to nerve diseases such as CIDP, or if you have diabetes or have been diagnosed with fibromyalgia, are you having difficulty climbing stairs and need support to rise up from a chair? If so, then please contact us to see if you can fully recover from your illness. We will help arrange referral to doctors who treat neuromuscular illnesses with immune globulins. Children and adults suffering from repeated ear, throat, or chest infections and allergies can also be completely helped. A simple blood test helps diagnose the immune deficiency responsible for such illnesses. People diagnosed with chronic fatigue may have underlying immune deficiency, which can be treated with IVIG, intravenous immune globulin. The above treatments are FDA approved and covered by all insurance plans. Covered California and Blue Cross members are covered, HMO and PPO.
We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. We have a comprehensive list of neurologists, immunologists, allergists, dermatologists, rheumatologists, oncologists, and hematologists. Kaba Fusion, patient-focused infusion specialists. अगर आपका दिल चाइनीज खाने को चाह रहा है तो देर ना कीजिए। सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां लजीज और रिश्ते हंगेज चाइनीज डिशेस चाइनीज शेफ के हाथों तैयार की हुई मिलती हैं। स्वीट एंड सार और चिकन कॉर्न सूप पाकिस्तान के चाइनीज रेस्टोरेंट की याद ताजा कर देगा। ताजा सब्जियों और जंबो श्रिम्प से बनाए हुए चाउमीन और चॉप सुई की बड़े पोर्शन जी भरकर खाइए। मुंह में पानी भर लाने वाले वेजिटेबल चिकन और श्रिम्प फ्राइड राइस आपकी जियाफत को चार चांद लगा देंगे। हर किस्म की तकरीब की केटरिंग के लिए याद रखिए उस्मानिया चाइनीज रेस्टोरेंट, 2244 वेस्ट डीवॉन, 7733384488। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट करीब आ चुकी है और हम देख रहे हैं नॉमिनेशन तमाम स्टेट से। मेरी दरख्वास्त है तमाम ब्यूरो चीफ सफ़ीर पाकिस्तान जियो के हमसे रब्ता कायम करें और वो लोग जो किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं अवार्ड नाइट में, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। हमारा नंबर देख रहे हैं, हमारा ईमेल देख रहे हैं, हमें ज़रूर रब्ता कायम करें। नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं कि अरब एमिरेट एयरलाइन इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड, स्टार्टिंग एयरबस December 1st फ्राम सैन फ्रांसिस्को। अगर आप इस बस का टूर लेना चाहते हैं तो सफ़ीर पाकिस्तान से रब्ता कायम करें। हम आपको इस एयरबस में ले जाएंगे और आपको पूरी एयरबस दिखाएंगे। एमिरेट एयरलाइन का और कारनामा, मैं समझता हूँ कि एमिरेट एयरलाइन बहुत अच्छी आला सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही है और हम बड़े मशकूर और ममनून हैं एमिरेट एयरलाइन के कि वो ग्राउंड पर भी और एयर में भी अपने पैसेंजर का ख्याल रखती है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान के अवार्ड नाइट के लिए राब्ते शुरू कर दीजिए और हमसे रब्ता करें और हमें बताएं कि आपके शहर, आपके इलाके में कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको हम अवार्ड दें, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है, आप हमें एंडोर्स करेंगे तो हम उसको रिसर्च करेंगे, हम उनको फाइनल नॉमिनी के हिसाब से लेकर आएंगे। नाज़रीन, तो ये थी आज की रिपोर्ट। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।